Namaskar everyone, myself Prashant Singh Yadav and I am here to represent the solution of our problem statement ID SIH 1498 on the behalf of our team Believers. So हमारा टाइटल है Develop a proctored exam tool for shortlisting the candidates for the national and international level hackathons. So हमारा ये जो proctored exam tool है ये हर तरह से ख्याल रखता है कि जो पर्सन है वो एक बेहतरीन और प्रॉक्टर्ड और सिक्योर्ड वे में अपना एग्जाम कंडक्ट करवा पाए। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती हैं कि एक अच्छे तौर पर वो अपना हैकाथॉन कंडक्ट करवा पाए एक ट्रांसपेरेंट और एक लेजिटिमेट वे में। तो यही उसका एक सॉल्यूशन है। आइए चलिए हम देखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं प्रॉब्लम के फ्लो की तरफ। हमने इस प्रॉब्लम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि हम इसे एक बेहतरीन तौर पर समझ सकें। सबसे पहला, हमें जो नीड हुई थी ऑल राउंडर एग्जाम पोर्टल की हुई थी। एक नीड हमें हुई थी बेस्ट वे टू टेक एग्जामिनेशन की। हम चाहते थे कोलैबोरेट करना अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और हम चाहते थे कि जो रिजल्ट हो एक सिक्योर्ड वे में और एक बेटर वे में चाइल्ड के सामने यानी कि कैंडिडेट के सामने प्रस्तुत किया जाए। वैसे तो ये एक ओवरव्यू है, लेकिन आइए चलो हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, बट फिर भी हमने हमारा एग्जाम प्रॉक्टर टूल को काफी अच्छे तरीके से बनाया है इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए। फर्स्ट वन इज रिमोट मॉनिटरिंग। द सॉफ्टवेयर शुड अलाउ proctors to remotely observe the exam takers via webcam and screen sharing to ensure that no unauthorized assistance is provided during the exam. Second point, identity verification. We had implemented a robust identity verification mechanism to ensure that the exam taker is intended participants, preventing the impersonation and fraud. Third one is cheating prevention. Incorporate advanced monitoring features such as real-time AI-based facial recognition, eye tracking, and suspicious behavior detection to identify and flag potential instances of cheating. हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि जो हमारा एआई मॉडल है वो अच्छे से ध्यान रख सके कि अगर कोई चाइल्ड यानी कि कोई कैंडिडेट चीटिंग करना चाह रहा है, उसकी आई मूवमेंट्स इधर-उधर जा रही है, तो हम फ्लैग्स जनरेट कर सकें। Now, the fourth challenge is secure environment. We should have to ensure that the exam environment remains secure by disabling access to unauthorized resources like other applications, websites और external devices during the examination. हमने और किसी अदर एप्लीकेशन और वेबसाइट का जो एक्सेस है उसे ब्लॉक कर रखा है। फॉर एग्जांपल जो एनीडेस्क सॉफ्टवेयर आता है, हमने उसको ब्लॉक कर रखा है हमारे इस एग्जाम प्रॉक्टर टूल पर। Now, fifth point, we should have to maintain the data privacy. We prioritize data privacy and security, adhering to stringent standards to protect sensitive information of both exam takers and organizers. Data encryption and secure storage practices will be implemented to maintain confidentiality. Now, the sixth point is scalability. The software should be capable of handling large number of concurrent exam takers without compromising on performance और security. हमने इस चीज का ख्याल रखा है कि हमारा जो टूल है वो स्केलेबल रहे, चाहे जितने भी नंबर ऑफ एग्जामिनर्स एग्जाम टेकर्स आ जाएं, वो जो एफिशिएंसी है वो बिगड़े नहीं। उसके बाद हमारे पास आता है सेवंथ पॉइंट, दैट इज यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। आगे जाके आप देखेंगे प्रोटोटाइपिंग में कि हमारा जो इंटरफेस है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है और काफ़ी ईज़ी टू एक्सेस है। Now, the eighth point is about compatibility. We ensure compatibility with different operating systems, browsers, and devices to accommodate diverse user preferences and accessibility needs. Ninth point is integration. The proctored exam tool should be able to integrate with various application and assessment platforms commonly used in institutions, organizations, and testing agencies. हमने इस प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया गया है। And now the 10th point is reporting and analytics. Provide comprehensive exam reports and analytics to assist institutions in evaluating exam performance, identifying trends, and making data-driven decisions. हमने जो रिजल्ट है उसे काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल वे में दिखाया है ताकि जो एग्ज़ाम टेकर्स या फिर इन्विजिलेटर्स हैं उन्हें काफ़ी अच्छे हाईलाइट मिल सकें कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस को लेकर। और रही बात कंपैटिबिलिटी की, हमारा डिवाइस हर तरह के डिवाइस हमारा जो प्रॉक्टर्ड एग्जाम टूल है हर तरह के डिवाइस पर कंपैटिबल है। आइए अब देखते हैं हमारे सॉल्यूशन फ्लो चार्ट की ओर।
हमारे पास सबसे पहले होगा सुपर एडमिन, जिसकी 2 सब ब्रांचेस होगी, ऑर्गेनाइजेशन और कैंडिडेट। ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर लॉगिन क्रेडेंशियल्स ना हो तो वो रजिस्टर करके अपने लॉगिन क्रेडेंशियल पा सकती हैं। सिमिलरली अगर कैंडिडेट के पास लॉगिन क्रेडेंशियल ना हो तो वो भी रजिस्टर करके अपने लॉगिन क्रेडेंशियल पा सकते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के डैशबोर्ड पे। ऑर्गेनाइजेशन का डैशबोर्ड हमारा एक्चुअली 3 लेयर्ड आर्किटेक्चर सिस्टम है, जिसमें सबसे ऊपर आएगा सुपर एडमिन, उसके बाद आएगा इवेंट क्रिएशन, देन आएगा आपका ऐड एग्जाम का ऑप्शन। Now, after creating the events, you have the rights to check past events, ongoing events and upcoming events। जितना भी आपका डेटा होगा डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन पर, और वहां पर लिंक शेयरिंग फीचर भी अवेलेबल होगा फॉर द इवेंट। उसके अंदर ही इवेंट के अंदर ही आपको मिलेगा ऐड एग्जाम का ऑप्शन, जहां पे आप अपना मॉनिटरिंग का वे चूज कर सकते हैं, इवेल्युएशन मेथड चूज कर सकते हैं, और जो क्वेश्चंस है उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ आपके पास इवेंट क्रिएशन के साथ-साथ कैंडिडेट लिस्ट को एडिट करने का भी ऑप्शन होगा इन द ऑर्गेनाइजेशन डैशबोर्ड पैनल, जहां पर आप जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें क्रिएट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। अब ये जो हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर एक चैटबॉट का भी फीचर अवेलेबल है फॉर द बोथ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज कैंडिडेट। यहाँ पर आपको चैटबॉट में मिलेगा यूजर क्वेरीज और एफएक्यूज। ये एक्चुअली एआई सपोर्टेड भी है और साथ ही साथ कस्टमर सपोर्टेड भी है। वहाँ पर आपकी जनरल क्वेरीज के सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब आते हैं हम कैंडिडेट साइड में। कैंडिडेट साइड में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपके लिए एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, जहाँ पर आपके एग्ज़ाम सिलेक्शन और वेबकैम फ़ोटो इनपुट को लिया जाएगा। और जैसे ही आप इन सब प्रोसीजर्स को फ़ॉलो अप करने के बाद ऑन द डेट ऑफ द एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम शुरू करते हैं, तब आपका वहाँ पर होगा फेशियल रिकॉग्निशन, ऑडियो रिकॉग्निशन, और साथ ही अगर आप किसी तरह के चीटिंग करते हुए या डबल फेस करते हुए पाए जाते हैं, तो आपका एग्ज़ाम कैंसल किया जा सकता है विद सम वार्निंग मैसेज, जहाँ पर आपकी आई ट्रैक्स होंगी, टैब स्विचिंग चेक करी जाएगी, ऑडियो डिटेक्शन चेक करी जाएगी, स्क्रीन मिररिंग और शेयरिंग चेक करी जाएगी, सच एज़ ज़ूम और एनीडेस्क, और बाकी जो रिमोट एक्सेस है उसे ब्लॉक किया जाएगा, वर्चुअल मशीन है उसे ब्लॉक किया जाएगा, और जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे भी ब्लॉक किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपने एक फेयर वे में एग्ज़ाम दे दिया, तो आपका एग्ज़ाम एंड हो जाएगा और उसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनरेट हो जाएगी, जिसे आप आगे जाकर रिजल्ट्स में डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ आवर सॉल्यूशन फ्लो चार्ट। लेट्स गेट अहेड। सो ये जो हमारा प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम टूल है, ये रहे उसके होम पेज और मॉनिटरिंग साइट, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो यूज़र्स हैं उन्हें ब्लॉक किया है, क्योंकि वो चीटिंग करते हुए पाए जा रहे थे। और वहाँ पर आपको अनब्लॉक करने के भी ऑप्शन मिल जाएँगे, और ये राइट्स ऑर्गेनाइज़ेशन के पास हैं। आइए आप प्रोटोटाइपिंग भी देखते हैं। सबसे पहले आप इसका फ़ोन व्यू भी चेक कर लीजिए। ये रहे कुछ मोबाइल डिज़ाइन्स कि मोबाइल में किस तरह से दिखने वाला है। नाउ अब बारी आती है प्रोटोटाइप की। सो लेट्स बिगिन। तो नमस्कार, ये है हमारा एग्ज़ाम पोर्टल की वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्लाइडर ऑप्शन है। स्लाइडर के साथ-साथ नीचे अनाउंसमेंट पैनल बनाया गया है, और यहाँ पे यूज़र का लॉगिन पैनल है, और उसी के साथ-साथ ऑर्गेनाइज़ेशन का भी लॉगिन पैनल है। यहाँ पर आप साइन इन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया हो तो। उसके बाद ये आपको गैलरी मिलेगी, और बाय द वे यहाँ पे हमने कैप्चा का भी ऑप्शन दे रखा है फॉर द सेफ्टी पर्पसेस। और यहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन भी मिलेगा, जो कि आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दी जाएँगी, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स होंगे। सबसे पहले जैसे कि आपको दिखा देते हैं, ये रहा एआईसीटीसी का। ये यहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मिलेगा, यूपीएससी का मिलेगा, और साथ-साथ में आपको गेट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कैट एग्ज़ाम के लिए सारे एक्सटर्नल लिंक्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं, जो कि हमारे साथ आगे फ्यूचर में कोलैबोरेट करेंगे। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं एक बार यूज़र के लिए गो थ्रू में। लेट्स जस्ट साइन इन, और यहाँ पर आपको आपके कैंडिडेट्स की डिटेल मिल जाएगी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पैनल। यहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम का स्टेटस मिलेगा कि कितना टाइम पेंडिंग है, और अगर आप एग्ज़ाम स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस चल रहा होगा कि आपने जो नए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है
उसका स्टेटस क्या है कि वो एक्सेप्ट हो गई है, रिजेक्ट हो गई है या फिर पेंडिंग में है। यहाँ पर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना एग्ज़ाम शुरू कर सकते हैं। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन आपको मिलेंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। जैसे आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें एग्ज़ाम के रूल्स मिलेंगे। आप टैब स्विच नहीं कर सकते, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते और ऑडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, या फिर आपकी जो ऑडियो है उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। एग्री किया हमने और एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमारे पास कुछ डिस्टॉर्शन हुआ है वॉइस में, तो क्या आता है? देखिए, बैकग्राउंड साउंड फाउंड मैनी टाइम्स, तो हमें एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगर ये बार बार रिपीट होता है तो हम ब्लॉक आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमारी इमेजेस में यानी कि हमारे जो फेशियल रिकॉग्निशन फीचर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है या फिर कोई अदर पर्सन आ जाता है, तो क्या नोटिफिकेशन आएगा? योर फेस मूवमेंट डिटेक्टेड मैनी टाइम। और अगर हमने इसके बाद भी अच्छे से एग्ज़ाम दिया, वेट अ मिनट, अगर हमने इसके बाद भी अच्छे से एग्ज़ाम दिया और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सबमिट कर दिए, तो यह हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और हम आ जाएंगे रिजल्ट पैनल पर और यहाँ से हम रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन वाली साइड पर। यहाँ पर आ जाते हैं और अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्ट्रेशन ना करा हो, तो वो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बाय फिलिंग आउट देयर नेम, हेड का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, टाइप, आइडेंटिटी, लोगो, ईमेल, मोबाइल नंबर, ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस एक्सेट्रा। अब यहाँ से आप साइन इन कीजिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ आपको लेफ्ट साइड ऑफ के पैनल में ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स मिल जाएंगी। राइट साइड वाले पैनल में आपको अपकमिंग इवेंट्स दिखने वाले हैं और उनका स्टेटस दिखने वाला है कि वो कब हेल्ड होने वाले हैं। और ये रहे इवेंट पैनल। यहाँ पर आप अपने इवेंट को क्रिएट कर सकते हैं, नेम, बॉडी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, गाइडलाइंस, वेन्यू नेम और इवेंट डेट देकर। और जो कि इवेंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं आपको उनकी इवेंट डिटेल्स मिल जाएंगी, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और अपकमिंग सबकी अलग अलग पैनल्स में। और जिनको आप जानना चाहें आप सबको जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस इवेंट में आकर एक एग्ज़ाम फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाइएगा और यहाँ से आप अपना एग्ज़ाम क्रिएट कर सकते हैं उस इवेंट के लिए। और यहाँ से अगर आपको अपलोड क्वेश्चन करने हैं एग्ज़ाम के तो वो भी आप कर सकते हैं अच्छे फॉर्म में, जहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा पूरा पूरा और आपने जैसे ही अपलोड किया तो वो आपको शो हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर आप टाइप करेंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप पूरा अपलोड कर देंगे पेपर और यहाँ क्रिएट एग्ज़ाम करने के बाद आपका पेपर क्रिएट हो जाएगा। एप्लीकेंट्स वाली लिस्ट के अंदर आप अपने एप्लीकेंट्स की लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो ये रही हमारी एप्लीकेंट्स की लिस्ट, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कितने कैंडिडेट्स ने आपके उस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। और अगर उन कैंडिडेट को आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ सर्च बार से आप उन्हें सर्च भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं मॉनिटरिंग स्क्रीन कैसी होगी। तो ये है हमारी मॉनिटरिंग स्क्रीन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ यूज़र्स ऑलरेडी ब्लॉक हो रखे हैं चीटिंग करने की वजह से। अगर हम उन्हें अनब्लॉक करना चाहें तो उन पर टैप करेंगे, टैप किया और उन्हें हम चाहें तो यहाँ से अनब्लॉक कर सकते हैं। तो दैट इज़ इट गाइस। और लास्ट चीज़ रह रही है जो कि रिज़ल्ट का सेक्शन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपना रिज़ल्ट पब्लिश कर सकते हैं और जो रिलीज़ रिज़ल्ट होंगे आपको यहाँ पे शो हो जाएँगे और जो पेंडिंग रिज़ल्ट होंगे वो यहाँ पर आपको शो हो जाएँगे। सो दैट इज़ इट गाइस। ये थी हमारी एग्ज़ाम पोर्टल की वेबसाइट, जिसमें हमने पूरी कोशिश करी है कि सारे के सारे सिक्योरिटी मेजर्स का ध्यान रख सकें और हर तरह की चीटिंग को अवॉइड कर सकें। जय हिंद। सो आइए चलिए देखते हैं अब हम यूज़ केसेस की ओर। पहला, इट इज़ अ सिक्योर वे टू ब्लॉक स्क्रीन शेयरिंग एंड स्क्रीन मिररिंग। किसी भी तरह की स्क्रीन शेयरिंग और स्क्रीन मिररिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये एक कंप्लीट प्रॉक्टेड वे है जिसके थ्रू एग्जामिनर बच्चों पर वॉच रख सकता है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉल जिसे आप कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, स्विचिंग ऑफ टैब इज डिसेबल्ड। फोर्थ, इट इज़ अ सिक्योर वे टू ब्लॉक रिमोट एक्सेस टूल्स सच एज एनी डेस्क। फिफ्थ,
secure way to track user activity if he or she is trying to use virtual machines. 6. Audio and video detection by AI. Now, आइए अब हम देखते हैं selling points की ओर. So, our first selling point is this commercial project is highly cost and time efficient. So, हमने इसमें चेकिंग प्रोसेस काफी ज्यादा इजी कर रखा है, तो रिजल्ट बड़े जल्दी और बड़े फास्ट वे में आपको दिख जाएगा. सेकंड, डिजाइन फॉर proctoring in a highly secured way. Third, we have a user-friendly interface as we had seen in the prototypes. Now, let's go to the dependencies part. Our first dependencies is our application website require access to the internet speed. That's quite obvious one. Fingerprint for mobile applications, mic and camera access. Now, facial recognition and ID scan. Now, that is it, guys. Thank you for your time. And this is our team details. Myself, Prashant Singh Yadav, and I am the team leader. And these are my team members: Ridham, Manish, Ayush, Anshul, and Manbir. Thank you so much and have a great day.